हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है वो भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तो आज का एपिसोड खास तौर से आपके लिए है। आज हमारे साथ हैं कार्तिक जावेरी, जो कि ट्रांसेंड कैपिटल के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट है। कार्तिक, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या म्यूचुअल फंड्स एक सही जरिया है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? म्यूचुअल फंड से कोई बेहतर तरीका नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। यू सी हाँ। देयर आर टू थ्री फंडामेंटल एडवांटेजेस दैट अ म्यूचुअल फंड हैज। सबसे बड़ा है, नंबर वन थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज दैट इट क्रिएट्स द हाईएस्ट रिटर्न पॉसिबल अमंगस्ट ऑल ओके। द रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स। अभी अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड पे ऐसे कोई लेबल नहीं लगा कि दिस इज मेंट फॉर रिटायरमेंट, बट इट हाँ इज एन हाँ। इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन कीप डूइंग फॉरएवर. You can get in when you want, get out when you want, which means liquidity is 100%, and हम्म। it creates the highest amount of wealth for you and charges you the least amount of tax. I don't think you can ओके। find a better product for doing your retirement planning, because retirement में हमें क्या चाहिए कि हमारे पास एक जमा पूंजी हो. We have a corpus and that corpus needs to get created as fast as it possibly could, and that हम्म। only a mutual fund can do. आजकल यंग प्रोफेशनल्स बहुत जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम रिलैक्स करें, थोड़ा 10-15 साल काम करके उसके बाद दुनिया देखें या दूसरी हॉबीज परस्यू करें। तो उनके लिए अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आप क्या पोर्टफोलियो बनाएंगे? See, if I'm making a portfolio for young people, number one, they don't have too many other responsibilities. EMIs come hote hain, they can aggressively invest. So, हम्म। A, they can aggressively deploy more money, and हम्म। B, I will make the deployment to something more aggressive. So, for them, I would say just put about 20 to 30% in large cap funds, and remaining हम्म। 80% distribute between mid cap and small cap. If you look at a 5-year comparison, typically when what happens is that small caps have done the best returns, then mid हम्म। cap, then large cap. So in that sense, let them be invested in the area which is going to give the maximum return. इससे हो ये जाएगा कि by the time they finish their 15 years or 20 years or 25 years, their multiplier factor will be much higher. For the people who are of a regular age already, now they have हम्म। already been through a part of their life, खर्चा कर रहे हैं, there is responsibility of children, school fees भी है, other राइट। commitments भी है, loans भी है. So for them, हम्म। you don't have too much of a choice. So for them, the large cap would be 20 to 30%. Mid cap has to be about 20 and 20%, 20 and हम्म। mid cap, 20 small cap. And then the remaining 30%, they can do some variety in terms of sectors, because the sectors will give them the kicker for their portfolio. So that portfolio ओके। can be a little different for these people, because they'll need a little more variety, because they also have to read the goalpost in the same 15 or 20 years time. But at the same करेक्ट। time, they're starting a little bit late. The portfolio हम्म। also needs to have a little more stability from a general mental point of view, because they are already at a senior age. ओके। यहाँ पर एक बात आती है कि हम अक्सर अपने इस शो में या फिर दूसरी जगह पर भी कहते सुनते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग भी करते रहना चाहिए, थोड़ा डेट का पोर्शन भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसमें जरूरत नहीं है उस सब की, एक आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए और अपने रिटायरमेंट के गोल के साथ लगातार इन्वेस्ट करते चलते रहिए। Yes, so that's a feeling. Feeling इसलिए आती है, और हर बार feeling वो टाइम पे आती है जब मार्केट थोड़ी सी गिर रही होती है और थोड़ा मंदी का माहौल होता है. So it's हाँ। always that way. That's the time you suddenly realize, oh, debt is something that exists. You see? हम्म। But the thing is, इसकी जरूरत नहीं है. ओके। It is absolutely not required. If you are a systematic, disciplined, and a consistent investor, and if you हम्म। have been investing regularly for years and years together, हम्म। लगातार आप 20 साल तक अपना एसआईपी चला रहे हैं या 15 साल, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. बट जो ये हम्म। कर लेते हैं ना, वो उनकी नैया पार हो जाती है. बेसिकली दे कैन रिटायर वेरी फास्ट, दे कैन डू व्हाट दे वांट, दे हैव ऑप्शंस. By the time they हम्म। are 40 years old, they probably have 2, 3, 4 crores in their hand. And the हाँ ones who are हाँ। starting in the middle, by the time they reach 60, they will have about 6, 7, 8 crores. Well, it's very simple. This is not by investing lakhs and lakhs of rupees in big chunks. This is हम्म। just people who very simply can do 30,000, 40,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakh SIPs and small amounts. They can also हम्म। make a big corpus. अब लास्ट में बात ये आती है कि अगर आपको विड्रॉल करना है, आपने पैसा तो अपना इकट्ठा कर लिया, कॉर्पस तो बन गया, लेकिन विड्रॉल करना भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट काम है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो विड्रॉल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पैसा ग्रो भी करता रहे और आपके खर्चे भी चलाता रहे। सो इसमें भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया विकल्प दिया है आपको. व्हाट हाँ यू हाँ। कैन डू इज अ फैसिलिटी कॉल्ड SWP, हम्म। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. जिस तरह से आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। SWP में आप म्यूचुअल फंड को ये बता रहे हैं कि हर महीने मुझे इतना पैसा आप रिडीम करके दो, यानी कि इतना यूनिट्स मुझे रिडीम करके दो. सो देन हम्म। द मनी विल कम टू योर अकाउंट लाइक अ रेगुलर मंथली इनकम काइंड ऑफ अ थिंग, यू सी.
इसमें आपको Okay. ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट भी आएगा और कैपिटल भी आ सकता है कभी कभी. सो इट्स अ मिक्स ऑफ द टू. बट अगर आपने बहुत सालों तक इन्वेस्टमेंट किया है तो नेचुरली आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और देन फिर आप ये एसडब्ल्यूपी में ज्यादा आपका प्रॉफिट ही एंजॉय करोगे. बट इसमें एक ट्विस्ट है. सी इन माय ओपिनियन, मैंने जितना भी कैलकुलेशन लगाया है इतने सालों में, एसडब्ल्यूपी करते हुए अगर आपके पास जो कॉर्पस है, मान के चलिए कि आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, you do not do a SWP of more than 6% withdrawal of the year. 4% करेंगे तो और भी बेटर है. What I mean is this is not the rate of return. हम मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स will earn about 12 to 15% rate of return, but you do a withdrawal between 4 to 6%. यानी कि 1 करोड़ का अगर आपका कॉर्पस है तो आप 4 to 6% यानी कि 4 लाख से 6 लाख रुपए तक का एनुअल विड्रॉल कीजिए उसमें से. तो आपका 20 से 25 साल पैसा वो चल जाएगा. हाँ, तो वो आराम से 20-25 साल चलेगा, ग्रो भी होता रहेगा, एंड यू विल नेवर हैव अ सिचुएशन कि दैट द मनी विल गो अंडर योर कैपिटल. नॉट ओनली दैट, द मनी विल गेट ओवर. चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो रिटायरमेंट है वो हैप्पी होगी और रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो भी हैप्पी होगी. थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स. तो आज का ये एपिसोड हम यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपको ये कैसा लगा बताइए, हमें फीडबैक दीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमें लिखिए. आईडी आपकी स्क्रीन पर है, ईमेल कीजिए. तो आज के शो को यही वाइंड अप करते हुए, दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.